Dear all, I welcome you all on behalf of Association of Muslim Professionals. My name is Shehzad. I represent Association of Muslim Professionals. I work here as an operations manager. So today we are all here for a webinar which is about employability training program. So I'll just briefly take you all through a short presentation of ETP. AMP's Employability Training Program, or ETP, has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time and to become the right fit in the present day modern organization. Our ETP trainers are seasoned professionals who have in-depth understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resource, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ETPs there on a regular basis, usually once every month. These are a few of the pictures right in front of you when we conduct employability training program. You can just have a glance at it. So skill training, company tie-ups, and candidate mobilization. This is one of the major part of employability training program. So these are how our skill training program are being conducted in various colleges. We partner with different companies for skill trainings. So far, our achievement as an employment assistance, we have conducted more than 42 plus job fairs on ground. And since pandemic, we have done 9 online job fairs, 270 plus job drives we have done on ground. And since pandemic, we have done 4 online job drives, 200 plus employability training program. And since pandemic, we have taken this platform online as well. So we have conducted 9 online ETPs, 100 plus mock interviews in colleges, and 20,000 plus candidates have been placed in jobs through Association of Muslim Professionals. AMP has recently launched two major projects, indiazakat.com and the indiamentors.com. indiazakat.com is India's first Zakat crowdfunding platform floated by the Association of Muslim Professionals with a view to bring the Zakat seeker and Zakat giver on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of people without seeking to generate any commercial surplus. And the indiamentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AMP tries to reach out to every needy student of India through the medium of education, career guidance, and employment assistance. The indiamentors.com envision a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. So thank you so much, everyone. And I would now like to introduce you all to the speaker of the day, Mr. Rahil Khan, who is a postgraduate in pharmacology, having over 13 years of experience in leading national and international universities as an academician. He gained additional experience through working in India as well as international multinationals at different positions, such as marketing executive, business development manager, pharmacist, and even served as a regional training manager in a healthcare company. He is an ardent believer in live your passion. Hence, he made training and facilitation as his profession, something he's passionate about. He's certified train the trainer from Eka Academy, mentored by master trainer Brigadier Sushil Bhasin. He is currently working as academic head at Jamia College of Pharmacy, imparting hard and soft skill to the pupil. His other passion includes research, writing, and reading, which he is living by publishing research articles in national and international journals, training and facilitating the process of clinical research to his mentees, also serving as editor-in-chief to Youth Times on annual college magazine. He keeps himself busy in different event management work as well, apart from his KRA for overall development of his mentees as well as organization. He firmly believes that training and teaching can surely bring the positive change if imparted properly. So I now request Mr. Rahil Khan to please come forward and honor us with his. Thank you.
Mr. Rail, you're on mute, so I request you to please unmute yourself and Yes, thank you. thank you very much for a beautiful introduction of mine. Well, this is not about me. This is all about the coming generation, that is the students of today, and which are going to become the professionals tomorrow. And we at AMP and I myself, as an academician as well as in my professional life, I always believe that the students are the basic, they are someone who are going to change the future of the not only the world but also our country and the profession as well. And I come to know that this particular program is for pharmacy colleges, and myself as a pharma graduate, postgraduate into pharmacology, and as well as I have spent more than 13 years now in terms of teaching as well as into doing various jobs into industry as well. So without wasting the time, we are just going to start with the. Uh, I'm just going to share my screen with you people. And there it is. Fine. So to all the students, and I guess most of the students are from the final year. And as a student of pharmacy itself, what I have learned all the technical things, in my college days, which you are learning today, whether it is about pharmaceutics, whether it is about pharmacology, whether it is about pharmacognosy or quality assurance, blah, 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 any kind of subjects, which you are learning right now. But once you are going to start your career, post your colleging, in college days, these subjects are quite crucial. In your after college, the knowledge of these subjects will become crucial as well. But one thing which we lack as a pharma students, which I have always seen, that we don't have, certain kind of employability skills, or which we collectively called as life skills. Life skills, that is, communication, adaptability, and your attitude and all, which is very essential for us to work hard to achieve the pinnacles in our career, in our professional life. So starting with this, that how you can increase your employability in pharmaceutical industry. We are also going to talk about the employability kind of thing, as well as the, as you know, this is the employability training program workshop, which is known as ETP by AMP. So this is something which we are going to study. But before going in a deep, I would like to have answers from students. Shahzad bhai, if they can write the answers in the chat box. That why are you studying? If people can write something in the chat box, then why you are studying? Why you have, whether you are studying B pharmacy, M pharmacy, D pharmacy, whatever. Why you are studying? Answer me quickly. All the participants have an option to write in chat box, so you can please share your thoughts. Yeah. And I'm requesting all the students over here that this is going to be a workshop, not a usual kind of webinar. So I would like you to interact through the chat box. Plus, you should be sitting with a pen and paper, a notebook and paper wherein you can write certain things. Because I'm also going to share with you a very crucial kind of thing, which is your resume, how you can make the resume. Okay, so you have to just sit with your pen and notebook. So if we can have the answers over here. Okay. To make career, good answer. Studies for the better, bright future and have a healthy lifestyle. To improve medication adherence, to pursue our career or higher education for higher education, make our career. Good. See, I want any kind of answers. Okay. No answer is a wrong answer. Always understand this thing. Okay. There is no answer which is wrong answer. Okay. You have to give the answers. Okay. Now, most of the time when you have been asked that why are you studying, or most of the students have been asked that why you are studying, most of the students give this particular answer, that they are studying just because they want to work.
Okay, they want a job. And when you are going to ask them that why you want to work or why you want to, do a job, then the people say that I want to make a career. Or perhaps the most, valuable answer which you should learn today, that to serve people, always understand this particular thing. Whether you are doing a job, whether you are becoming an entrepreneur, whatever you are going to become, serving more people give you more success. Okay, let me give you the example of world's, best players, whether they are entrepreneurs or whether, they are doing job or anything, whether it is Bill Gates, whether it is Elon Musk, anyone, they all say the same thing. If you are going to serve more people, you are going to, become more successful. Okay, so you can earn more as well, and you can you can earn more respect as well. So that's what something which you all have to understand, that you have to serve the society. When you are going to serve more to the more people, you are going to become more successful. So that's what you have to understand over here. And employability skills. When we are talking about employability skills, once you are going to graduate from your colleges, respective colleges, I know that some will say that I want to do M.Pharm. Some will say I want to pursue for a management degree. But still, whether you are going to do pursue for a management degree, that is MBA, or whether you are going to do an M.Pharm into pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology, blah blah blah, any subject, ultimately you are going to do job, employment. Okay, employment, and the abilities which are required to become employed is called as employability skills. These are the skills, and amongst them, what are those? Number one is learning, number two is teamwork, number three is problem solving, number four is initiative, number five is planning and organizing, number six is self-management, number seven is communication, and number eight is technology. How technologically adaptable you are. Okay, then there are other skills as well, like adaptability and decision making, other. But we are not going to understand or go in deep with those things. We are going to understand number one thing, that is learning, which you have to focus right now. Okay, as you can read over there, a very bold word written in the white, that is earn. If you really want to earn, whether money, respect, fame, or trust of people, you have to learn. Understand this point. If you really want to earn anything in your life, whether it is money, whether it is respect, anything, you have to learn first. Okay, hence if you want to earn, then you have to learn first. Fine. So learning styles are there, which we are going to discuss in very brief. Learning styles are there. People learn by visual aids, like seeing something, like reading something. If you are reading something, you are seeing a picture, or you're doing you're seeing any article or something, a book, anything. That is your visual memory. Okay. Then comes auditory. Auditory, that is something which you are going to hear only. Okay, you are hearing something and you are memorizing it, you are learning it. That is your auditory style of learning. Then comes kinesthetic. Kinesthetic learning is something that some people have a learning style, like they want to do something, unless and until they do something, they do not learn anything. Okay, like if you are not going to know how to pour the how to handle a pipette. Okay, तो जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा. So there are people, okay, कि जब तक वो लोग पिपेट को हैंडल नहीं करेंगे, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा. बट देयर आर सम पीपल कि वो सिर्फ देख कर समझ में आ जाएगा उनको कि कैसे हैंडल करना है. देयर आर सम पीपल कि वो सुन के समझ सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. ओके, सो दिस इज समथिंग. Now what kind of mindset do you have? There are basically two types of mindsets. One is a growth mindset, another one is fixed mindset. Now, why we are discussing these things before discussing the other things which are core of ETP program? Why? Because most of the time I have seen that the students, they think that I have been studying pharmacy since 4 years now, and I am, on the verge of graduating myself, or I am, studying M.Pharm, and now I am on the verge of post-graduating my course now. So most of the people have these kind of things in their mind,
and they think that we don't have to learn other forms of things, okay, whether it is communication, soft skills, life skills, etc., etc., etc. But the technical things which we learn in college are basically less required in the outside world, okay, as compared to the soft skills, which is required, more. And most of the companies, most of the organizations, they say that we only require 25% of the technical knowledge, that is called domain knowledge, which is your pharmacy knowledge, and 75% of the person's attitude, okay, their behavior, their communication, okay, their decision making ability, blah blah blah, etc. So basically, two types of people are there. One is a growth mindset people, another one is a fixed mindset person. Okay, growth mindset person is someone who accept the change very easily, who adapt to new things. Okay, growth mindset person is someone who always try to learn new things. Okay, like today you are going to learn more, more about resume writing, interview techniques. Okay, how you are going to dress up with the interview for the interview and all. So that is something you have to understand and you have to take it. So if you have a growth mindset, you will learn these things. Okay, if you have fixed mindset, then you will you are not going to learn the new things. Okay, next, what will you learn today? Now this is the major part of our presentation today and the workshop's major part. So today you are going to learn about the resume writing. Okay, you can write, you can note it down as well, you can take the screenshot of your mobile as well, so that these things are going to help you in the future. You are going to learn about resume writing, then you are going to learn about interview, how you are going to prepare for the interview, how you are going to dress up with the interview, and arriving on time, that is time management we are going to see in very short period of time. Then the types of interview, body language, communication, and how you are going to deal with the nervousness. And then we are going to have some question answer session from your side, and then we are going to conclude. But before going ahead, in pharmacy, basically a pharmacist's job opportunity or work areas are basically what? If you want to become a pharmacist, a practicing pharmacist, either you can go in a community pharmacy, that is a retail shop or something. Either you can become a hospital pharmacist, that is a pharmacist in the hospital itself. You can become a clinical pharmacist. Now clinical pharmacist role is also emerging very well. Like you have to explain the patient more about the adverse reactions of the drug, how to take the drug, the counseling of the patient, that comes into clinical pharmacist. Then there are other settings like academics, okay, whether in teaching or research or in clinical research, which is in another area. Okay, I have been into clinical research for a very long time, and then I was also an instructor. I am still an instructor into clinical research. I still teach clinical research. So that is also a very booming area into pharmacy. Then comes the regulatory part, the regulatory agency you can go, like FDA. आप FDA में जो है तो job कर सकते हो. And then in industry, which is a very huge area. Either you can go in production, in quality assurance, R&D, that is bulk drug or formulation, then quality control, packaging, regulatory, sales and marketing, which is also a very promising area for most of the students. So these are actually the basic things, basic job where you can land in after you're completing your bachelor's degree in pharmacy. But always understand, whichever job you want to do, you have to first go through interview. Okay, and before going through interview, you have to make a particular resume. Okay, resume is something which is going to help you to reach till the point of interview. Resume is not a thing which is going to get you a job. Resume is a paper or is a kind of tool which is going to help you to get to the interview. अगर कहीं पर इंटरव्यू का ऐड आया है, शहजाद भाई, hello, yes, right. Yes, please also ask a faculty member or someone, because I think going only in English will be quite difficult for the students, because I know all these students. I am myself is an academician, so I can understand that if you are going to only speak in English, so that is going to be a big trouble for the student. So should I only go in English or should I also use Hindi as well? Hassan bhai, if you could just highlight this. Hassan sir.
Rahil Sam, जी actually, most of the students are, more conversant in Hindi rather than English, although they are from That's English why. medium. I know I because think yeah, uh, ठीक है, हिंदी में भी तो जाएंगे if हम लोग। आई एम गोइंग टू यूज हाँ थोड़ा हिंदी में इंग्लिश। होगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। ओके, नो इश्यूज, नो जी इश्यूज। Okay students, sorry for the trouble, this glitch, because I know कि बहुत सारी बार और हमको इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, मतलब ये जो है ना, ये एक ऐसी बात नहीं है कि कम्युनिकेशन डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक जबान में ही बोलना आपको बहुत ज्यादा आए, जैसे कि इंग्लिश। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन मतलब कि इंग्लिश में बहुत फटफट बात करना, दैट इज कम्युनिकेशन, विच इज नॉट ट्रू। ओके, कम्युनिकेशन हम आगे देखेंगे। हम हिंदी बोलेंगे क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो हमको हिंदी में ही ज्यादातर बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेज्यूमे होता है, आपको हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी जॉब करनी है कहीं भी, वेदर आपको प्रोडक्शन में जॉब करना है, मार्केटिंग में करना है, R&D में करना है, क्लिनिकल रिसर्च में, एकेडमिक्स में करना है, कहीं भी जॉब करना है, तो आपको इंटरव्यू देना होगा। अब वो इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है, उसका सबसे पहला स्टेप है दैट यू हैव टू मेक अ गुड रेज्यूम। और यहां से आपका चालू होता है। आई वांट यू पीपल टू राइट डाउन ओके व्हाट आर रेज्यूम इज, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है रेज्यूम, बायोडाटा, CV सब कुछ एक जैसा होता है। सबसे पहले तो रेज्यूम क्या होता है? रेज्यूम इज अ रिटन कंपाइलेशन ऑफ योर एजुकेशन। अगर थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है तो वो, उसके साथ पहले तो एजुकेशन, उसके साथ में अगर वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है तो वो, उसके अलावा आपके क्रेडेंशियल्स कि आपने कुछ अचीवमेंट वगैरह की है वो, और सारी की सारी आपकी जो चीजें हैं वो बहुत छोटे पेपर में 1 या 2 पेजेस का रेज्यूम बनता है। ओके, इट इज ओनली 1 और 2 पेजेस रेज्यूम। एंड लेट मी टेल यू, ऑल द फ्रेशर पीपल, जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लोग जो अपना एप्लीकेशन भेजते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू से पहले, तो उस डॉक्यूमेंट को जो कहा जाता है वो होता है एक रेज्यूमे। ना ही वो CV होता है, ना ही वो बायोडाटा होता है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूम, बायोडाटा एंड अ CV? यहां पे मैंने कुछ एक चीजें लिख के रखी है। वैसे बायोडाटा यूजुअली जो वर्ड और टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, इंडिया और एशिया की दीगर जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, या जो है तो श्रीलंका भी, इवन यहाँ पे बहुत पहले से बायोडाटा ही वर्ड यूज होता था और एक ही वर्ड यूज होता था। लास्ट कपल ऑफ डिकेड, पिछले 20 सालों में एक्चुअली हमको समझ में आया कि इंटरनेशनली रेज्यूम किसको कहते हैं, CV किसको कहते हैं, और बायोडाटा किसको कहते हैं। और आज के दौर में इंडिया में भी रेज्यूम, CV, बायोडाटा सबका डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो आपको ये पता रहना बहुत जरूरी है। बायोडाटा जो होता है जनरली इट कंसिस्ट ऑफ द लार्जर इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, लाइक योर फैमिली हिस्ट्री एज वेल, और आपका एजुकेशन भी होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उसके अंदर में आप क्या काम कर रहे हो, उसके अलावा आपका और भी दूसरी चीजें होती है उसके अंदर में, जैसे आपके फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, आज के दौर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और बायोडाटा जनरली ये आज के दौर में मैट्रिमोनी के लिए यूज होता है। मैट्रिमोनी यानी कि आपको अगर शादी के लिए कोई रिश्ता देना है या देखना है तो उसके लिए बायोडाटा यूज होता है। रेज्यूम विच यू आर गोइंग टू लर्न, आप रेज्यूम बनाना सीखोगे आज। ओके, बायोडाटा नहीं, क्योंकि आपको शादी के लिए अप्लाई नहीं करना है। ओके, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है B.Pharm के बाद। सो रेज्यूम इज यूजुअली 1 or 2 पेज समरी, ओके, and of your experience, work experience and education, and generally no more longer than 1 or 2 pages। 1 या 2 पेज का आपका रेज्यूम बनता है। ओके, और उसके अंदर में बहुत कंसाइजली चीजें लिखी होती है, स्पेसिफिक चीजें लिखी होती है। और रेज्यूम में सबसे जो मेजर चीज है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स होंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आउट करना है आपके एकेडमिक एक्टिविटीज पर। दैट इज कि आपका क्वालिफिकेशन, आपके परसेंटेज, ओके, उसके बाद में आपके जो है तो अचीवमेंट्स, ये सब चीज होती है। क्योंकि जो लोगों का, अब जैसे कि अभी मैं अगर कहीं पर अप्लाई करता हूँ, ओके, या हसन सर है वो अप्लाई करते हैं, या शहजाद भाई है वो कहीं अप्लाई करते हैं, तो इन लोगों का रेज्यूम नहीं होगा। ओके, या आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं जितने भी, उन लोगों का जितना भी होगा, उन लोगों का जो है तो रेज्यूम नहीं होगा। क्योंकि नाउ आफ्टर 10 years जो एक समरी तैयार होती है, आपका मोर डिटेल्ड समरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज
करिकुलम विटा है। ओके, अ शॉर्ट समरी ऑफ योर लाइफ। ओके, अब मेरी 10 साल की प्रोफेशनल लाइफ हो चुकी है, 10 साल से ज्यादा की, मतलब के 13 साल के ऊपर होते आ रहे हैं। तो मेरा जो बनेगा वो बनेगा करिकुलम विटा है, जिसके अंदर में मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले नहीं आएगा। अब ऊपर में लिखा होगा कि आई एम अ डॉक्टरेट और आई एम एम.फॉर्म इन फार्माकोलॉजी, बट उसके बाद में जो है तो मेरा एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा, राइट, और मेरे दूसरे अचीवमेंट चालू हो जाएंगे, मेरे पब्लिकेशन वगैरह आएंगे लास्ट में, उसके पहले जो है तो बीच में मेरा क्वालिफिकेशन आएगा। ओके, बट मेरा जो मेन स्ट्रेस होगा कि मैंने अपने लाइफ में जो वर्क किया है उसके ऊपर में मेरे अचीवमेंट्स क्या क्या थे। दैट इज समथिंग विच इज नोन एज करिकुलम विटाe। ओके, जो रेज्यूम होता है इसमें मेजर जो पार्ट होता है वो होता है आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद में अदर अचीवमेंट्स विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड इनटू योर रिसेंट लाइफ। तो आपका ये समझ लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट या तो वो फ्रेशर हो या उसको 1 से 2 साल 3 साल तक का एक्सपीरियंस हो, तो उसका रेज्यूम बनता है, और उसके ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं उनका बनता है करिकुलम विटा। Right? Building a resume. Now, as you can see over here, it is a handwritten kind of a resume, and you know, which is very something which is very funny kind of thing. Okay. Number one thing, always understand, if you want to build your resume, you have to build it your own self. आपको resume अपने आप ही बनाना है। किसी का resume कॉपी पेस्ट करके अगर आप लेते हो तो वो बहुत गलत होगा, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है या उसका जो एक्टिविटीज है हो सकता है वो आपकी ना हो। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो भी चीज आप रेज्यूम में लिखोगे वो सब चीजें ट्रू होना चाहिए अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज जब आप ये इंटरव्यू में जाकर आप रेज्यूम सामने आपके वहां पे देखा जाएगा तो दे आर गोइंग टू आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन, और अगर आपके रेज्यूम से आपके क्वेश्चन नहीं मिलते देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल फॉर यू। तो इसीलिए आपका रेज्यूम कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा उसको पर्सनलाइज बनाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, आपको खुद लेकिन बनाना होगा वो रेज्यूम। उसके बाद में रेज्यूम शैल बी डिजाइन कीपिंग इन माइंड द एम्प्लॉयर। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपको आपका एम्प्लॉयर कौन है। क्या आप मतलब कि आप एक फार्मेसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, टीचिंग के लिए मतलब, या क्या आप हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर रहे हो। एक तो चीज ये है। उसके अलावा जॉब को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप जो है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आप क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके, या क्या आप पैकेजिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप R&D के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको ध्यान में रखते हुए अपना रेज्यूम बनाना होगा। ओके, उसमें ग्रामर टाइपोग्राफी जो है तो आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ सेक्शंस कितने होते हैं रेज्यूम के? So you can start writing from here. Section number 1. Section number 1 is something which is your identifying information. Identifying information means जिसमें आपका नाम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने जो लिखा है बोल्ड में राहिल खान, then comes your mobile number and your email ID. Okay? And यहाँ पे मैंने XXX लिखा है। जब आप लिखोगे मोबाइल नंबर तो आपको क्लियर कट आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ओके, देन आपका ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए। ओके, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसका ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स उनकी ईमेल आईडी याद नहीं रहते हैं, या याद भी रहते हैं तो वो कहते हैं कि सर मुझे अब उसको ओपन करना नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। खैर अभी तो ठीक है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू हो गया तो लोग थोड़ा सा वापस आ गए ईमेल्स की तरफ में, बट दिस इज अ जनरल पॉइंट। देन यू कैन ऐड योर एड्रेस ओवर हियर, right? And you have to have your good photograph along with this. Okay. Sorry. So if you are going to have your good photograph, sorry, जो generally recommended है, क्योंकि ये आपका जो resume है इस पे आपका recent photograph होना is always good. जब आप अपना recent photograph लगाते हो, पुराना नहीं लगाना है। मतलब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो अपने यंग एज का फोटो लगा देते हैं, तो अभी कैसे दिखते हैं पहले कैसे दिखते थे, थोड़ा सा एक मिसमैच हो जाता है। तो हमेशा रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ लगाना है। ओके, एंड दैट टू इन अ प्रोफेशनल अटायर। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको मेरा दिख रहा है, नॉट इन जीन्स एंड टी शर्ट एंड ऑल। जो आपका फोटो भी लगे तो वो एक प्रोफेशनल लगे। राइट, नेक्स्ट इज द सेक्शन 2. द सेक्शन 2 ऑलवेज कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ओके, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट आपको अगर कोई हायर करे
तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव देना होगा कि मेरी लाइफ का ये ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. ओके, इट्स द पर्पस ऑफ द रिज्यूम ऑब्जेक्टिव टू कंडोन्स दी कम्युनिकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिज्यूम. दैट इज व्हाट, कि आपको ये फोकस करना होगा कि जिसमें एम्प्लॉयर को ये समझ में आए कि भाई मैं ये कैंडिडेट को क्यों लूं. ओके, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, ओके, सीकिंग अ टीम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इसका मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आप अपना खुद का भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके बाकी लोगों के साथ काम करते हुए. तो आपको हमेशा जो है तो फोकस इस बात पे रखना है कि आपका जो भी Mr. Rahil, your voice is not audible. I think his net is gone off. Can we call him and inform him? We should need to call him and inform him. Sorry for the inconvenience, everyone. I think because of some technical glitch, our speaker has got disconnected. We will get him back soon. I'm back. Okay, okay. Thank you. I'm back. I know there are some technical glitches. Sorry students, see these are the technical glitches actually, and which happens. This is something, we are now living in a digital era where communication and all those stuffs are going online only, and online activities का जहाँ पर एक कुछ बहुत सारे benefits है कि यूएस से भी आपको बंदा पढ़ा सकता है. आज मैं यहाँ पे अलग जगह बैठा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, fine, but still there are certain drawbacks as well, so we have to understand these things. Well, coming back to the topic, so आपको जो अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव है ये बहुत सोच समझ के लिखना है कि आई वांट टू ग्रो विथ अ डेवलप, आई वांट टू डेवलप माय करियर विथ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन सो एंड सो डिपार्टमेंट. जैसे कि आपको कोई डिपार्टमेंट भी आप मेंशन कर सकते हो, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर आप स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के लिए जा रहे हो तो ओके. आप फिर उसके बाद में चेंज कर सकते हो, अगर आपको मार्केटिंग के लिए रिज्यूम देना है तो आप चेंज करके उसमें मार्केटिंग का लिख सकते हो. ओके, तो इस तरह से आपको एक कैरियर ऑब्जेक्टिव बनाना है. और जैसे मैंने बताया, आपकी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन वो तो स्टेशनरी रहेगी. आपका नाम स्टेशनरी है, आपका जो नाम है वो है, आपका मोबाइल नंबर वो स्टेशनरी रहेगा. ऑलवेज राइट अ मोबाइल नंबर विच इज वर्किंग. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, क्योंकि एज एन एकेडमिशियन आई एम ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, कि मैं जो है तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी देखता हूँ. मेरे पास में कई सारे रिज्यूम्स आते हैं और हम उसमें देखते हैं कि जो उन्होंने बंदे ने मोबाइल नंबर दिया है वो काम ही नहीं कर रहा है. उसके अलावा ईमेल एड्रेस का भी ऐसे ही होता है. उसके बाद में सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव पे जब आते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत कंसाइजली आपको लिखना होना चाहिए, और ये 2 लाइन का होना चाहिए, हार्डली 1 या 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. आपको उसमें कोई एक पैराग्राफ नहीं लिखना है बहुत बड़ा. 1 या 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव बनाइए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाइए, और उसके बाद में जो है तो आपका, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है. सीकिंग पोजिशन ऑफ अ फाइनेंशियल कंसल्ट utilization strategy, analytical interpersonal communication skill for development of the organization. Okay, ऐसे ही डिफरेंट जो है तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बहुत कंसाइजली आपको बनाने हैं. राइट, ये बनाने के लिए आप आपके फैकल्टीज की भी मदद ले सकते हैं कि सर मुझे कौन से डिपार्टमेंट में, पहले तो आपको तय करना होगा, आपको पहले ये देखना होगा कि किस टाइप का आपका जो है तो ये होने वाला है. यहाँ पे मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको पुअर एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि टू ऑब्टेन अ पोजीशन एज सेल्स कोऑर्डिनेटर, ये एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अजीब सा मतलब के एग्जांपल होता है. या एन एंट्री लेवल मार्केटिंग रोल टू ऑब्टेन अ पोजीशन एट मर्सिडीज. ये बहुत, मर्सिडीज यहाँ पे नाम आ गया, मतलब कि ये इसलिए लिखा है हमने कि ये एक ब्रांड नेम हो गया. ओके, अब ये ब्रांड नेम हो गया मतलब कि कंपनी का नाम हो गया. आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि आई वॉन्ट टू वर्क इन फाइजर, आई वॉन्ट टू वर्क इन कैडिला, आई वांट टू वर्क इन सिप्ला. आप ये इस टाइप की जो है तो कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं लिख सकते.
कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको ये सोच के लिखना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, किस टाइप का पोजीशन चाहिए. ओके, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ सेकंड सेक्शन ऑफ योर रिज्यूम. देन कम्स द थर्ड सेक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएट से शुरू किया है इसलिए क्योंकि हो सकता है कुछ मुझे लगा कि एमकॉम स्टूडेंट्स भी हो, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये जो तरीका होता है लिखने का, आपको करंट आपकी जो स्टडी लेवल है वहां से लिखना है. अगर आप बीकॉम फाइनल ईयर में हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैचलर्स इन फार्मेसी. ओके, उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम और उसके बाद में आपका सीजीपीए हो या आपका परसेंटेज हो कितना आया है वो लिखनी है. उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, जैसे कि कई सारे, जैसे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, पूना यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है. उसके बाद में जैसे यहाँ ग्रेजुएशन लिखा है तो आपका डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको वो लिखना है. उसके अलावा 12th के आपको लिखना है कि आप कौन सी स्कूल में थे, उसका बोर्ड कौन सा था. उसके बाद में 10th का आएगा, मतलब कि पहले आपका सबसे पहले जो करंट है, आप अगर पीजी में हो तो पीजी का आएगा, यूजी में हो तो यूजी का आएगा, फिर 12th, फिर 10th. अब आपको यहाँ पे 10th के बाद खत्म हो जाना है. क्यों? बिकॉज 12th एंड 10th ये बोर्ड एग्जाम्स है. इसके नीचे में आपने 8th में कितने मार्क लाए थे, 6th में कितने लाए थे, फर्स्ट में आपका नंबर 1 आया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, यूजुअली जो है तो हम इसको इस टाइप से जो है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टेबल बनाते हैं. और जैसे मैंने बताया कि ये आपका प्रोमिनेंट टेबल नंबर 3 पर आ रहा है, सेक्शन नंबर 3 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी आपका जो लाइफ है, ये आपका जो लाइफ है ये मार्क्स बनाने, परसेंटेज बनाने का है. तो आपका जो भी आपके अचीवमेंट्स हो गए आप ये यहाँ पे लिख दोगे. ओके, दिस इज योर क्वालिफिकेशन सेंटर. नेक्स्ट कम्स समर इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस. जैसे कि बहुत सारे जनरली अभी जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनका या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है या तो जो है तो मतलब फाइनल ईयर के बाद में वो हॉस्पिटल वगैरह में ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जो है तो हॉस्पिटल या जो है तो किसी रिटेल शॉप में ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है. उसके अलावा जो है तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अलावा उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है. सो ये जो आप ट्रेनिंग करोगे ये इंटर्नशिप को आप नंबर 4 पे लिख दोगे. ओके, आपने जैसे भी लिखना है, इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ये एम्प्लॉयर होता है, क्योंकि अगर आपने कोई समर ट्रेनिंग की है, आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, 1 मंथ का यूजुअली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है बी फॉर्म में भी, और वो अगर आपने किया है, उसके अलावा आपने ज्यादा ट्रेनिंग की है और अच्छे से उसमें किया है, तो उसको बुलेट पॉइंट में आपको लिखना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये एम्प्लॉयर जब देखेगा कि यार ये बंदा कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इंटर्नशिप करके आया है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव अ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका जो रिज्यूम होता है ये आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने की एक सीढ़ी है. ओके, ये आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, आपको जॉब दिलाएगा ये इसका गारंटी नहीं देता है, बट आपको ये इंटरव्यू तक पहुंचाएगा. तो जनरली जब भी जो एचआर मैनेजर्स होते हैं या जो भी जो एम्प्लॉयर है, उनके पास में हजारों जो है तो मतलब रेज्यूम्स आते हैं, और उन हजारों रेज्यूम्स में से या सैकड़ों रेज्यूम्स में से जो है तो वो कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं. तो वो शॉर्टलिस्ट इसी बेसिस पे करते हैं कि जैसे कि आपकी यहाँ पे जो पॉइंट आप डालोगे, अच्छे से लिखोगे कि आई हैव डन एन इंटर्नशिप और यू नो समर ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन सो एंड सो कंपनी, इन सो एंड सो डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट में आपने क्या क्या इंटर्नशिप में आपके मतलब सीखा है. जैसे कि आपने लिखा है कि टैबलेट पंचिंग मशीन, कौन सी पंचिंग मशीन यूज की थी. ओके, कोटिंग में आपने अगर डिपार्टमेंट में काम किया है तो कौन सा कोटिंग मशीन आपने हैंडल किया है. उसके अलावा आपने अगर जो है तो मतलब डिसोल्यूशन अपरेटस यूज किया है, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस यूज किया है. ठीक है, ये सारी जो आप इसमें टेक्निकल टर्म्स आपकी जो मेंशन करोगे, तो आपको जो टाइप का जॉब चाहिए ना वो टाइप के लिए जो है तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट देगा. देन कम्स द सेक्शन नंबर 5. यहाँ पे आते हैं अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट्स. नाउ अचीवमेंट्स, व्हाट डिड आई डू, मतलब कि आपने क्या क्या अचीव किया है. आपका जो स्कूलिंग लाइफ हुआ है, उसके बाद आपका कॉलेज का लाइफ हुआ है, इस पूरे पीरियड में आपने 20, 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स जब तक भी आपने स्टडी की है, उसके बाद में आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो 22, 23 ईयर्स में आपके जो और भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है रादर देन योर क्वालिफिकेशन, आपके जो मार्क्स है उसके अदर देन आपने क्या क्या अचीव किया है. जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग कुछ
उल्टा सीधा झूठ बोल देते हैं कि आई वॉज अ हॉकी प्लेयर इन दिस माई स्कूल डेज, या आई वॉज अ फुटबॉल चैंपियन इन माई कॉलेज लेवल। बट ये सब जो चीजें होती है ये झूठ होता है, इसको आपको लिखना नहीं है। अगर आपने इवन बैडमिंटन की कोई टूर्नामेंट जीती है, ओके, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसको लिखना आपका जरूरी है, राइट। उसके अलावा आपने अगर कहीं पर कोई मतलब स्पोर्ट्स में कोई इनाम जीता है, कोई प्राइज जीता है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आपकी कोई स्किल सेट ऐसी है जो आपको बताए, जैसे कि स्पोर्टिव लोग जो है तो मार्केटिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो आप, मार्केटिंग जॉब के लिए, एमआर वगैरह के लिए, इसमें स्पोर्टी लोग जो है ना बहुत ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फिजिकली फिट होते हैं भागने दौड़ने में, तो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप अपना वो भी चीज यहाँ पे बता सकते हो, ओके। दैट इज समथिंग योर अचीवमेंट सेक्शन नंबर 5। देन कम्स सर्टेन स्किल्स which comes on the skill set section number 6। यहाँ पे आती है आपकी skills and strength। अब इसमें आपको skills and strength में लिखना है, जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर का भी, ज्यादातर स्टूडेंट्स आई नो कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, चाहे वो जैसे महाराष्ट्र में होता है MSc IT होता है, या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होता है कि कंप्यूटर कैसे चला है। उसमें मेजर जो पार्ट होता है जैसे कि वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, ओके, ये वाली जो चीजें हैं इसको लिखना बहुत जरूरी है। कोई आपने अदर लैंग्वेज और सीखी है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, फाइन। उसके अलावा जो होता है उसके अंदर में आप जो है तो मतलब कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हो कि आपने मतलब कुछ एक्स्ट्रा सीखा है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं चाहूंगा हर एक स्टूडेंट के वो कंप्यूटर्स में कोई ना कोई सर्टिफिकेशन जरूर करे, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, और ये इतनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हैंडल करना हर एक स्टूडेंट को आज की डेट में आना चाहिए, बिकॉज जब आप जॉब के लिए जाओगे तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना बहुत एसेंशियल है आज के डेज में, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज रनिंग ऑन कंप्यूटर ओनली, दैट्स व्हाई। देन आपका जो नेक्स्ट आता है पर्सनल डिटेल होती है, और इसी सेक्शन में, सॉरी, स्किल्स एंड स्ट्रेंथ में आप यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड करके इसमें आपका जो है तो वर्कशॉप भी डाल सकते हो। वर्कशॉप्स वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती है, जैसे कि अभी आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग वर्कशॉप। अगर आप ये अटेंड कर रहे हो तो आप ये भी अपने रेज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हो कि एक ऐसी ऐसी जगह से हमने एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड किया है। तो इससे जो एम्प्लॉयर होगा उसको ये पता होगा कि हाँ भाई जो बंदा आने वाला है हमारे पास वो कुछ ना कुछ जानता है इंटरव्यू वगैरह के बारे में, तो वो आपको पहला प्रेफरेंस देंगे बुलाने के लिए, ओके। या आपने कोई और वर्कशॉप अटेंड की हो, टेक्निकल कोई, मतलब अभी बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह चल रहे हैं, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं एक सेक्शन। देन कम्स योर पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, अगर लैंडलाइन नंबर आपके पास है या कोई अल्टरनेट नंबर है ये आता है। नेशनलिटी ऑलवेज राइट, इंडियन है हम लोग, वो लिखना है। परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस दोनों अलग अलग होता है। परमानेंट एड्रेस हो सकता है आपके घर का हो, और करंट एड्रेस क्योंकि आप जॉब के लिए मुंबई गए हो तो वहां पे किसी रिलेटिव के घर रह रहे हो या किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हो, तो वो आपका करंट एड्रेस होता है, तो दोनों भी आप लिख सकते हो, ओके। मैरिटल स्टेटस एंड फैमिली डिटेल्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, रिज्यूम में जनरली नहीं लिखते इसको, ओके। हाँ, इसको बायोडाटा में लिखते हैं, इसको जो है तो आपका जो करिकुलम विटाए होता है, CV होता है, उसके अंदर लिखते हैं, बिकॉज रिज्यूम जैसे मैंने बताया ये फ्रेशर्स के लिए और बहुत कंसाइज डॉक्यूमेंट है, इसमें मैरिटल स्टेटस वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। देन कम्स रेफरेंसेस। रिज्यूम का जो लास्ट सेक्शन होता है ये होता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस मतलब कि आपको ऐसा रेफरेंस देना है कि जो मतलब आपको प्रोफेशनली आपकी आइडेंटिफिकेशन कर सके, जैसे कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर का नंबर और नाम लिख सकते हो, अपने HOD का नंबर और नाम लिख सकते हो, ठीक है। या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपके कोई रिलेटिव हो या कोई एक पहचान वाले हो जो कि कोई कंपनी में मैनेजर हो या समथिंग हो, उनका भी आप रेफरेंस दे सकते हो। जो व्यक्ति आपको जानता हो, ओके, आप कई लोगों को जानते होंगे लेकिन आपको वो आदमी कितने अच्छे से जानता है, तो ऐसे व्यक्ति का आपको नंबर देना है, क्योंकि हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो बाकी सब चीजें आपकी देख के वो सेटिस्फाई हो जाए कि मुझे ये बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, लेकिन वो आपको रेफरेंस के लिए कॉल करे और ऐसा लगे कि जो बंदे को वो कॉल कर रहे हैं वो बंदा आपको जानता ही नहीं, तो आपको ऐसे एक व्यक्ति का, ऐसे एक पर्सन का नंबर देना है जिसको आप भी जानते हो और वो भी आपको अच्छी तरह जानता हो, ओके, ताकि वो आप कभी भी अगर उनके पास में कॉल जाए, ओके,
तो आपको मतलब ये समझ में आ जाए उनको कि हाँ भाई मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये बंदा जो है तो प्रोफेशनली अच्छा है, इन्होंने हमारे पास जो है तो 3 साल 4 साल जो है तो स्टडी की है फार्मेसी कॉलेज में, ओके ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसका जो है तो मतलब इसको नॉलेज अच्छा है, ये सब चीजों के लिए। देन यू हैव टू स्पॉट द एरर। अपना रेज्यूम पूरा ये बनाने के बाद आपको स्पॉट करनी है एरर को, जैसे कि टाइपो एरर होती है, स्पेलिंग और ग्रामर की जो एरर है। आपको पता है कि वर्ड में आप जब लिखते हो तो रेड कलर आ जाता है, मतलब कि स्पेलिंग सही नहीं है, ग्रीन कलर आ गया मतलब कि वहां पे ग्रामर का जो है तो प्रॉब्लम है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आप वहीं से समझ सकते हो। उसके अलावा आपका जो चीजें ऐसी है कि जो स्पेसिफिक नहीं है, ओके, तो वो चीजों को आप हटा सकते हो। फाइन। उसके बाद में आप सारी चीजें चेक करने के बाद में अपने रेज्यूम को जो है तो हॉबीज वगैरह को भी लिस्ट आउट कर सकते हो। अगर हॉबीज को आपको डालना है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हॉबीज को डालो, अपने रेज्यूम में हॉबीज को इंक्लूड करो, मगर हॉबीज वही इंक्लूड करो जो आपकी है। जैसे कि कई लोग लिखते हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग, अब रीडिंग एंड राइटिंग तो लिखते हैं लेकिन उनको रीडिंग राइटिंग का शौक है ही नहीं, बस रीडिंग एंड राइटिंग एक हॉबी है अच्छी तो लोग लिख देते हैं। अब आपसे अगर सामने वाला पूछेगा कि आपने रीडिंग क्या की, तो आपको ये बताते आना चाहिए कि आप कौन से टाइप की बुक्स पढ़ते हो, वेदर इट इज नॉवेल्स आप पढ़ते हो या आप जो है तो अदर देन योर सिलेबस बुक्स, अदर देन योर सिलेबस बुक्स, उसको रीडिंग हॉबी कहते हैं। ओके, आपकी स्विमिंग है हॉबी है तो आपको तैरते आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू स्विम। ओके, अगर आपकी क्रिकेट हॉबी है तो उसको बराबर देख के डालो। ओके, और हॉबीज को बराबर सही तरीके से लो। कई लोगों की हॉबीज हो सकती है मोबाइल में गेम खेलना, लाइक पबजी और माइनक्राफ्ट समथिंग आजकल जो भी चल रहा है, बट ये सब चीजों को इंक्लूड नहीं करना है आपको, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम वेस्टिंग थिंग्स है। ओके, आपको ऐसी हॉबीज बतानी है जो कि आपकी मतलब प्रोफेशन को और आपकी मतलब प्रोफेशनल आइडेंटिटी को मतलब कुछ बताए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप रीडिंग बता सकते हो अगर आपको पढ़ने का शौक है तो, लेकिन आपको क्या क्या आपने पढ़ा है या किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो वो आपको उसके नाम, उसके ऑथर के नाम, उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अदरवाइज द इंटरव्यूअर कैन कैच यू। ओके, वो आपको पकड़ सकता है और उसकी वजह से आपको जो है तो जो नौकरी मिलने वाली होगी हो सकता है वो नहीं मिलेगी। So always understand. Then you should have a good covering letter with that. और कवरिंग लेटर जो होता है ये जनरली हर बार आपको चेंज करना होता है। कवरिंग लेटर में जो है तो ऊपर में टू जो भी मैनेजर है या जो भी एम्प्लॉयर है उनका नाम वगैरह सब आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस आएगा, और उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखकर लिखोगे एप्लीकेशन फॉर सो एंड सो पोजीशन, और हमेशा जो आपका रेज्यूमे है उसके साथ में कवरिंग लेटर होना चाहिए। ओके, सो वेदर यू आर सेंडिंग इट बाय ईमेल या पोस्ट के जरिए भेज रहे हो। पोस्ट के जरिए तो आजकल भेजा नहीं जाता है, यूजुअली जो है तो ये ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। तो आपका जो ईमेल है उसका जो बॉडी होगा लेटर का, ओके, जो आप ईमेल लिखोगे, ओके, अटैच करोगे रेज्यूम उसके साथ, तो आपका जो आप वो लिखोगे दैट वुड बी योर लाइक कवरिंग लेटर। तो वो कवरिंग लेटर जो है तो बहुत अच्छे से आपको लिखना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, और क्या आपने ये आपको ये किस तरह पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी है। ओके, ये पोजीशन, हाउ डू यू कम टू नो दैट देयर इज अ वैकेंसी इन दिस डिपार्टमेंट और दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको पेपर के जरिए पता चला, या आपको जो है तो monster.com या naukri.com के जरिए पता चला, या फार्मा ट्यूटर एक और एक वेबसाइट है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पे जो है तो बहुत सारी एड्स आती है, वैकेंसीज आती है, वहां से पता चला, तो ये आप वहां पे लिख सकते हो। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि मुझे ये पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल, एंड आई एम ऑल्सो अपेंडिंग माई रेज्यूमे विद दिस मेल। दैट वुड बी योर कवरिंग लेटर। इसमें जो है तो ग्रीटिंग करना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल, इस टाइप से। एड्रेस किसको कर रहे हैं आप, उसका ओपनिंग होने चाहिए, राइट अप पर्सनलेबल इनवाइटिंग, ये जो होना चाहिए। उसके अलावा स्किल्स वगैरह सब ये क्लोज करना चाहिए। ब्रीफली रिकैप योर स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है इसके अंदर में थोड़ी बहुत लिख दो आप कि मैं आई नो कंप्यूटर्स, आई हैव बीन एन इंटर्न इनटू दिस कंपनी, मैंने यहाँ ये कंपनी में इंटर्नशिप की है और मैं ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरह से। ओके, so this was all about your resume. As I have mentioned it earlier as well, that your resume is something, a tool which is going to lend you an opportunity to your interview. आपके इंटरव्यू तक पहुंचने की एक तरह से आपकी एक सीढ़ी है, एक तरह से आपकी एक चाबी है। ओके, और आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो रेज्यूमे है ये एक तरह का आपका खुद का एडवर्टाइजमेंट है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका जो है क्वालिफिकेशन है उसका एक एडवर्टाइजमेंट है। ओके,
तो ये बहुत नीटली आपका बनना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन विच वी आर गोइंग टू मूव नाउ, दैट इज इंटरव्यू। ओके, now an interview is something where you have to be very careful। okay, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो रेज्यूमे होता है, आपका रेज्यूमे कोई भी एम्प्लॉयर हार्डली 15 to 20 सेकेंड तक ही देखता है, ये चीज याद रखो आप, या बहुत हो गया तो 30 सेकेंड, क्योंकि उनके पास में इतना बड़ा बंच होता है रेज्यूम्स का, तो वो एक एक रेज्यूम जो है तो वो बार बार देखते नहीं है। ओके, वो बहुत कंसाइजली देखते हैं, जो रेज्यूम उनको अच्छा लगता है उसको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जितने वो सपोज उनके पास में 100 रेज्यूम आए हैं, उनके पास में 2 पोजीशन है, 100 रेज्यूम आए हैं, तो उसमें से वो हार्डली 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और उन 10 लोगों में से इंटरव्यू में से सिर्फ 1 या 2 लोग जो भी होंगे उनको वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक फनल होती है, इसको कहते हैं हम, मतलब ये एक फनल होती है, जब मतलब फनल मतलब जो आपको पता है, आप सब फार्मेसी के स्टूडेंट हो, जहां से कोई चीज छनती है। ओके, सो ये एक तरह का फनल होता है कि वो पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद में जितने लोग हैं उसमें उनको इंटरव्यू में बुलाते हैं, शॉर्टलिस्टेड लोगों को, और उसके बाद में आगे वहां से वो देखते हैं। अब जो आपका इंटरव्यू होता है, दैट इज समथिंग, यहाँ पे आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है। अभी तक आपका जो अपीयरेंस गया था वो ऑन पेपर गया था, तो पेपर में क्या होता है ना, आप बहुत कुछ चीजें बड़ी बड़ी लिखकर और अच्छे से किसी से और से लिखवा लेते हो, अच्छे से इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखवा लेते हो आप ऑब्जेक्टिव में, कैरियर ऑब्जेक्टिव में, उसके अलावा बहुत ब्यूटीफुल बना देते हो। ओके, रेज्यूम को, और ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी रेज्यूम को, क्योंकि आप सब फार्मा के स्टूडेंट्स हो, आपका रेज्यूम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही होना चाहिए। ओके, सिर्फ फोटो कलर आप लगा सकते हो उसके अंदर, बाकी आपका रेज्यूम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही होना चाहिए। वाई? कलरफुल रेज्यूम कभी नहीं बनाना है आपको, राइट? और जो भी फॉन्ट साइज होगा वो एक प्रॉपर होता है, आप इसको नोट कर लें। मैं यहाँ पे रुक कर जो है तो इंटरव्यू में रुक रहा हूँ, और आप लोग नोट कर लो कि आपका जो रेज्यूम होता है उसमें जो हेडिंग होती है, आपका जो नेम है, वो हमेशा 16 फॉन्ट साइज में होना चाहिए। 16 का फॉन्ट साइज उसका होना चाहिए। उसके बाद में वो बोल्ड में होना चाहिए, और उसका जो फॉन्ट है वो या तो एरियल हो या तो टाइम्स न्यू रोमन हो। ओके, ये 2 में से ही लेना, आड़ा टेढ़ा कोई भी ऐसा मतलब फॉन्ट लेने की जरूरत नहीं है। होता है ना कर्सिव जो होता है या फिर इटैलिसाइज्ड होता है, ऐसे नहीं करना है आपको। इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका जो है तो एड्रेस है, ये सब जो है तो 14 के साइज में आना चाहिए। ओके, इसके बाद में जो आपके सेक्शंस है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव 14 में आएगा, ठीक है, कैप्स में, कैपिटल में, और जो आपका ऑब्जेक्टिव आप लाइन लिखोगे वो हमेशा 12 फॉन्ट साइज में आएगा। ओके, तो इसी तरह से आपका क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन 14 के साइज में आएगा, और बाद में जो टेबल बनाओगे आप, उसका जो कंटेंट होगा वो 12 फॉन्ट साइज में होगा। ओके, इस तरह से। अब आपने रेज्यूम भेज दिया, एंड देन आफ्टर सेंडिंग योर रेज्यूम, नाउ यू हैव बीन कॉल्ड। अब यहाँ पे जब जो आपका स्टार्ट होगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इज समथिंग which is a process in which a potential employee is evaluated by an employer for prospective employment in their company। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है बहुत कुछ, मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे आपका जजमेंट किया जाता है, आपको जो है तो जज किया जाता है, आपको देखा परखा जाता है कि क्या आप ये जॉब पर्टिकुलर करने के लायक हो या नहीं हो। ओके, इसीलिए योर इंटरव्यू डे इज समथिंग कि आपका ये समझना चाहिए कि लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ओके, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। नाउ जस्ट टेक अ लुक विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। वन सेकेंड, आवाज नहीं आ रही है हसन सर? जी आवाज नहीं आ रही थी ना वीडियो की? नहीं नहीं। हाँ,
जी क्या आप सुन सकते हैं अभी? So you're going on a job interview. Step 1. Delete Yes, yes. Facebook. The voice is शहजाद भाई आवाज आ audible. रही है? जी जी आ रही है. जी अभी आ रही है. No, you gotta be qualified for the job you want. But I want to be doctor. Then you gotta go to school for like 14 more years. Be qualified. Think about your last job interview. Thank you, Sky High Air Tours. You will not regret hiring me. Start. Hooray! Not again. Crap. But let's assume you know what you're doing and you. Get qualified for the job you want and get set. Get your resume set. Here's mine. No, this is 30 pages long. Make it one page and keep it simple. Got it. A good resume has your background info and skills, but don't put in everything. No one cares if you were prom cake. Unless your job interviews for prom cake. Here's resume. No, you wrote this in... So keep it simple. A good resume has to be presentable. Got it. That means no typos and easy to read, but not too easy to read. Don't just write Hodor over and over again, unless you're applying for a job carrying around a little psychic kid with no legs. Here's resume. There are no typos and it is easy to read. This just says my name is Mario. But I have no background or skills. Just print out my resume and put your name on it. Got it. For the record, you should never do that, but we never get through this video otherwise. It's time to go to your interview. Just follow the 4 B's. Well, like the Beatles? Get back in the shower. The 4 B's. Number 1, be clean. Mario smell real bad, so I had him take a shower. And now we can go to his job interview clean, confident, and prepared. Okay. Got my resume. Took a shower. What am I forgetting? You forgot the second B. Be clothed. I am wearing clothes. Wear appropriate clothes, like a suit or something. And be on time. That's the 3rd B. What are you doing here? Isn't the interview happening right now? Is it? Final B. Be polite. I can do that. And say thank you when it's over. Got it. I must say, my good sir, it smells like a cat died in here. Would you care to say grace before I begin my lunch? Your toupee is quite impressive. Wherever did you get it, Mrs. Wilkinson? Goodbye. Don't forget, say thank you. Thank you. Congratulations! By some miracle, your new job liked you. Now, go back for your second interview. Nope, I did so well on my first interview, I don't have to. No matter how well you did, if you don't show up for your second interview, you won't get the job. No, I'm going to take a me day. But you have no job. What is that supposed to mean? That means every day is a you day. Oh, stop judging me! Congratulations, you got the job. I got the job. Now what? Now you get to go back in your suit and never say anything inappropriate for 8 to 12 hours a day, every day, for the rest of your life. Or, at least until you're too old to enjoy. So I hope you all must have enjoyed this video, because I always show these kind of videos, and specifically this is my somehow very favorite one with this, because this is something थोड़ा सा फनी भी होता है ये एक वीडियो, और हमको इससे कुछ बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी होगी, समझी भी होगी, कि रेज्यूम के बारे में आपका थोड़ा एक रिवीजन हो गया होगा इसमें, कि किस तरह से आपको रेज्यूम बनाना है, और आपने देखा होगा कि वो किस तरह से रेज्यूम में गलतियां कर रहा था, एंड देन हाउ ही मेड ऑल दोस थिंग्स। और आगे का हमारा जो जर्नी होगा, जो हम अभी सीखेंगे विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, कि हाउ यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट होती है, ये भी इस वीडियो के थ्रू आपने देखा होगा। Now let's me Okay, tell you sorry to first and interrupt, foremost, Rahil you have to sir. prepare for the interview and always understand, ये होता है ना कि हम Hello? कभी जैसे कोई त्यौहार आता है, चाहे वो दिवाली हो, ओके, या क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, ईद हो, ठीक है, जो भी त्यौहार होता है, या किसी की हमारे यहाँ कोई क्लोज रिलेटिव की शादी हो,
तो उस वक्त क्या होता है ना, हम बहुत ही एक दैट वी कंसीडर एज अ बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ, ओके। उस दिन हम जो है तो बहुत अच्छे से नहा धो के तैयार होते हैं, एंड यू नो वी ग्रूम अप वेरी वेल। तो यही समझने की कोशिश करिए आप सब स्टूडेंट्स को भी कि आपका जो भी इंटरव्यू होगा और जितनी बार भी हो, ऑलवेज अंडरस्टैंड, हो सकता है आपका पहला इंटरव्यू अच्छा ना गया हो, ओके, डोंट बॉदर एट ऑल, बिकॉज इट वाजंट योर लास्ट इंटरव्यू, ओके। ये आपका पहला इंटरव्यू था, आखिरी भी नहीं था जिंदगी का। तो हर इंटरव्यू से आपको कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंसेस आएंगे, ओके, आगे में लाइफ में। और अंडरस्टैंड कि जितने आप इंटरव्यू दोगे उससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, फाइन। सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल। और आपको बहुत उसके लिए लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है। और जब बेस्ट देना होता है तो इंसान क्या करता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट यू हैव टू बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, ओके, पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यू मेड अ वेरी गुड रेज्यूमे। उसमें जितनी भी बातें आपने लिखी सब करेक्ट थी, सब ट्रुथ था। और उसके अलावा जो है तो आपने बिल्कुल फॉर्मेट वगैरह सही करके रेज्यूम भेजा। वो भेजने की वजह से द एम्प्लॉयर कॉल्ड यू आइदर बाय ईमेल और टेलीफोनिक, ओके, उन्होंने कॉल किया और आपको इंटरव्यू के डे के लिए बुलाया, ओके। अब जब आपका इंटरव्यू का डे टाइम सब कुछ मिल गया आपको, देन यू हैव अ टाइम टू रिहर्स, यस, सो नाउ यू हैव टू रिसर्च अबाउट द कंपनी। जो भी कंपनी के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, चाहे आप वो कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के लिए जा रहे हो, सिप्ला के लिए जा रहे हो, रैनबैक्सी के लिए जा रहे हो, चाहे आप वो टोरेंट फार्मा के लिए जा रहे हो, चाहे आप जो है तो वो जीएस के स्मिथ क्लाइन है उसके लिए जा रहे हो, फाइजर एक कंपनी बहुत बड़ी है उसके लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई हॉस्पिटल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, ओके। उसके एग्जाम्पल्स आपके मतलब क्या क्या अचीवमेंट है उसको देखो, ओके। उसमें सिचुएशन और ये सब आपके जो अचीवमेंट्स आपके जहां जहां हुए हैं खुद के, वो आप उसको रिमेंबर करो कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या अचीवमेंट किए। जैसे कि हो सकता है आपने जो है तो अपने यूनिवर्सिटी में जो है तो बहुत अच्छे किसी सब्जेक्ट में मार्क लाए होंगे, या आप कॉलेज टॉपर रहे होंगे, या आप जो है तो मतलब कोई टास्क या कोई ऐसा किया होगा आपने कि आप हॉकी या जो है तो क्रिकेट में एक टीम में होंगे और मिस्टर उसमें राहिल, कॉलेज को कप मिला होगा, कोई जोनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे या जो है तो मतलब कॉलेज लेवल पे आपने टूर्नामेंट जीती होगी। मिस्टर वो राहिल, सारी चीजें आपकी जो है तो आप वो अक्यूमुलेट करो, वो सारी। उसके बाद में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको रखनी है। उसके बाद में अपना रेज्यूम, जो आपने वही रेज्यूम जो इस कंपनी को भेजा है, उसी रेज्यूम को दोबारा आपको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि आपने किस तरह से मतलब उसको रेज्यूम को भेजा है और वो क्या सही है बातें नहीं है, उसको रिफ्रेश करना है वो सारी चीजों को। उसके बाद में आपको फुल वापस चेक करना है इन मिरर इटसेल्फ कि आपको सही चीजें हुई है या नहीं हुई है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू स्टार्ट रिहर्सिंग नाउ, ओके। आपको रिहर्स करने की बहुत जरूरी है। रिहर्स करना यानी अपने आप को बार बार रिपीट करना, ओके, चेक करना। जैसे रिहर्सल होती है ना, जैसे फिल्मों में पहले करने से पहले लोग रिहर्स करते हैं, कोई आपने शो किया होगा, ड्रामा किया होगा, रिहर्सल की होगी। तो इस तरह से इंटरव्यू जाने से पहले भी आपको रिहर्सल करने की बहुत जरूरत है। आपको क्या करना है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख कर मतलब दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ओके। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का मतलब होता है आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आपको अपने बारे में क्या बताना है? सबसे पहले, माय नेम इज राहिल खान, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इनटू फार्माकोलॉजी, माय नेटिव प्लेस इज नागपुर एंड आई हैव ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। अब ये मेरा तो कंसाइज हो गया। आपका भी इसी तरह से जो आप बताना चाहते हो वो आपको एक sorry, I was muted. Mr. Shehzad? Rahil sir, we have less time left and we have to cover Q&A as well. So if you can just wrap up in next 5 to 8 minutes. बराबर मेरी आवाज आ रही है? बराबर चल रहा है? जी जी बराबर चल रहा है। खाली इतना है कि हमारे पास टाइम कम है। शहजाद भाई, Are you able to hear us, Rahil sir? Mr. Sheikh Naved? I think he is not able to hear us, but we are able to hear him too. Can you hear us, Rahil sir? राहिल साहब, कैन यू हियर अस? आवाज आ रही है आप लोगों को? राहिल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आई थिंक ये
हेलो राहल साहब, हेलो राहल सर, राहल साहब, एहसान भाई, एहसान नहीं है। हेलो, I think he is not able to hear us, but we are able to hear him properly. can you not call him? ओके, आ रही है ना मेरी आवाज? ओके ओके फाइन, नाउ आई कैन हियर यू एज वेल। Rahil sir, we have less time left, so if you can just wrap up in next 5 to 7 minutes, so we can do some Q&A. श्योर। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि ये आपको रिहर्स करना बहुत जरूरी है। आप कंपनी के बारे में जितनी भी बातें होती है, कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। अपने जो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन बताया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस, ये एक और एक क्वेश्चन होता है। कंपनी पूछती है कि आप हमारी कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हो, तो आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी के क्या क्या अचीवमेंट है जो कंपनी है, तो इसलिए आप वो कंपनी में जॉब करना चाहते हो। ये सब देन कम्स ड्रेसिंग फॉर द इंटरव्यू, विच इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और जनरली लोगों को लगता है कि क्या पहने क्या ना पहने, और कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा जो बहुत अच्छा ड्रेस है जो मैंने दीपावली में खरीदा था या ईद पे खरीदा था या क्रिसमस पे लिया था या किसी और त्यौहार पे लिया था, मैं वो पहन लूँ। बट ये इट इज नॉट सर्टनली लाइक दैट। आपको जो ड्रेस पहनना है दैट शुड बी अ फॉर्मल वन। आप किसी भी टाइप के जॉब के लिए जा रहे हो, बट यूर ड्रेसिंग शुड बी अ वेरी फॉर्मल वन। ओके, आपका जनरली जो फॉर्मल शर्ट्स में कंसिडर होते हैं, या तो आप व्हाइट तो हमेशा होता ही हो, बट उसके अलावा स्काई ब्लू होता है, उसके साथ में उसकी मैचिंग की टाई हो, ठीक है, ब्लैक ट्राउजर हो, ओके, और ट्राउजर भी जो हो वो बहुत ज्यादा फिट ना हो, जीन्स नहीं पहनना चाहिए कभी भी इंटरव्यू में, टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। किसी भी टाइप का जॉब हो, आपको हमेशा फॉर्मल वे ऑफ ड्रेसिंग में जाना चाहिए, चाहे वो मेल्स के लिए हो या फीमेल्स के लिए हो। और मेल्स के लिए भी अपने नाखून उनके कटे हों, बाल जो है तो बराबर जमे हो, क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा उनके बाल बहुत अजीब से खड़े होते हैं, अलग हेयर स्टाइल है आजकल बहुत सारे लोगों का, तो बाल जमे होने चाहिए। ओके, उसके बाद में अगर शेविंग करते हो तो क्लीन शेव हो, अगर आपकी दाढ़ी हो तो आप उसको बराबर ट्रिम कर लें, बराबर एक हिसाब से उसको रख लें। ओके, फॉर गर्ल्स एज वेल, बहुत ज्यादा ज्वेलरी ना पहने, बहुत ज्यादा मेकअप ना लगाए। ओके, एंड जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा चमक वाले या भड़कीले कलर के ना हो, फॉर्मल अटायर हो। ओके, दैट इज समथिंग फ्रॉम माय साइड, अ टिप फॉर यू पीपल अबाउट ड्रेसिंग। देन कम्स टाइम मैनेजमेंट, विच इज वेरी एसेंशियल। देखिए, आपको अपने टाइम को हमेशा मैनेज करके रखना चाहिए। स्पेसिफिकली आपको जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले वो चीजों को ध्यान पे पहले पे रखो जो अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट हो। ओके, the things which are urgent as well as important. Second thing which is important but not urgent, okay, उसको आप दूसरे नंबर पे रखोगे। okay, तीसरे नंबर पे you can avoid certain thing which is neither urgent not important, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि आपको कॉल, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको व्हाट्सएप चेक करने की जरूरत नहीं है अपना, ओके, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। और लिमिट कर सकते हो आप टाइम कंज्यूमिंग जो वेस्टिंग चीजें जो इंपॉर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं है, जैसे कि पबजी खेलना या फेसबुक चलाना, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। तो इस तरह से you will always be arriving on time when you are going to the interview. Okay, आपका जो अराइविंग टाइम है इंटरव्यू का, आधे एक घंटे पहले भी मत जाओ, 10 से 15 मिनट पहले जाओ इंटरव्यू में। ओके, और लेट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर पहले ही दिन अगर इंटरव्यू के टाइम में अगर लेट होते हो तो आपको एम्प्लॉयर समझ जाएगा कि दिस पर्सन इज डोंट हैव एनी सीरियसनेस इन हिज और हर सेल्फ टुवर्ड्स वर्किंग। ओके, इसीलिए आपको जो है तो ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, चेक आउट द कंपटीशन। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जब आप जाते हो तो कई लोग, ये हमने देखा है कि जब वो जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट और बैठे होते हैं तो वो तो पहले नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस नहीं होना, अपने कंपटीशन जो आप बाकी लोग हैं उनको चेक करो कि वो किस टाइप के हैं, वो सेम पोजीशन के लिए कितने लोग वहां पे दिख रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। ओके, उनसे थोड़ा बहुत आप बात कर सकते हो, उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हो बातों में, लेकिन बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होना है किसी से भी। ओके, और उनके हिसाब से अपने आप को कंपेयर करके आप देखिए कि आप कहाँ हैं। बहुत सारे इंटरव्यू के टाइप्स होते हैं, मैं इसमें से बता दूं, मेन जो हमारा है वो है पर्सनल इंटरव्यू। ओके, जिसकी हम बात कर रहे हैं 1-to-1 इंटरव्यू की। ओके, और जो पर्सनल इंटरव्यू होता है जनरली ये फोरमोस्ट थिंग होता है टू जज द पर्सन्स एबिलिटी। ओके, जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, एम्प्लॉय, उसकी जो एबिलिटीज होती है उसको जज करने के लिए पर्सनल इंटरव्यू इज द फोरमोस्ट टूल। ओके, जहां पे आपका एम्प्लॉयर है, आपका एचआर है, वो ये तय करता है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में कि क्या ये जॉब आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल इंटरव्यू। ओके, जहां पे आप होते हो और जो पैनल होता है या एक व्यक्ति का होगा या 2 व्यक्ति का होगा यूजुअली।
फाइन। उसके अलावा बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे कुछ मतलब आपको टास्क दिया जाता है। कई बार टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, ये यूजुअली तब लिए जाते हैं जब कैंडिडेट जो है किसी और सिटी में है या रिक्रूटर को टाइम बचाना है, सारे लोगों को नहीं बुलाना है। तो उन्होंने अगर सपोज 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो 20 लोगों में से और भी लोग कम करने हैं, तो पहले वो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कर देते हैं। और वो पहले होता था टेलीफोनिक ज्यादा, आजकल तो स्काइप के थ्रू इंटरव्यू होता है। अब जूम आ गया, जूम के थ्रू भी इंटरव्यू हो रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू इंटरव्यू होते हैं, कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। तो इस तरह से भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वीडियो कॉलिंग में। ओके, अदर टाइप इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रेस इंटरव्यू होते हैं जी, जहाँ पे जो इंटरव्यू में होता है उसको थोड़ा एक स्ट्रेस देते हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन में अजीबोगरीब क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल चेक कर सके। ओके, कि ये अडेप्टेबल हो पाते हैं सिचुएशन में, नहीं हो पाते हैं। ओके, उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे आपको कुछ टास्क दिया जाता है। यूजुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या आपको R&D में यूजुअली ये दिया जाता है, जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैंडलिंग करने के लिए वो बोलते हैं। अगर आपने लिखा है कि आपको क्रोमेटोग्राफी में आपको एक्सपीरियंस है, या आप HPLC यूज कर सकते हो, या आप जो है तो मतलब UV हैंडल कर सकते हो, तो आपको UV हैंडल करने के लिए दे देंगे। और वहाँ पे आपका टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू चालू हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट थिंग कम्स बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज विच इज वेरी असेंशियल। ओके, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, आई विल शो यू अ वीडियो। ओके, डायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज जो होता है, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आपका जो 93% जो होता है कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू बॉडी लैंग्वेज होता है। इट इज ओनली 7% विच आर थ्रू योर वर्ड्स। ओके, सो ये हमको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि हमको बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत सही करना जरूरी है। फाइन, जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज में कि गुड आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं।